screen is yes or no? Asking or no? Screen is yes. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ओम? Hello? You are mute. Okay, fine, fine. I got you. So let me अभी proceed. Yes. So let me proceed with uh, this the next subsequent topic that is we are going to cover today. That is Reynolds transport theorem. So this is also known as RTT. In few of the most of the textbooks they write RTT as well. And this theorem has a very big significance on fluid mechanics problem, in the sense that it essentially connects the system. सर Right, tell me. सुप्री माइक ऑफ कर देना वो Okay, डिस्टर्बेंस का। disturbance हो रहा है उसका. Okay, I'll switch his mic off. और सर आपका माइक परफेक्ट है, सुप्रियो का ऑन था तो Okay, okay, ओके। थैंक यू सुप्रियो, थैंक यू सर। okay. So the fact that the Reynolds transport theorem is essential. Why? Because it connects your control system. Control system, that is actual set of particles or actual set of fluid particles that you are looking at, with that of connects this thing to control volume. Control volume means the reason you are interested in. You are not looking anywhere else. There is a certain reason in space. You are looking at that particular reason or volume. You are fixing that volume, and let control system pass this. Let this control system, the set of fluid particles, pass this control volume and let it go away. And you are going to analyze the things in control volume manner. But the problem with control volume is you cannot apply physical laws here. So that is why we need to have certain equations that connects the control volume mathematical construct with that of control system in order to apply physical laws such as mass continuity and momentum conservation and all sorts of things. Okay, so in order to do that, let me draw what you see. So in order to understand control system and control volume, we can think of a river that is flowing, and we want to analyze the motion of, or the velocity or the pressure of each molecules and each fluid particles in certain fashion. But we cannot do that. Okay, computationally it will be very cumbersome in order to track each particles all the time, in all the spaces and all the times. What we do generally is we fix a region in a space, and we call this region a control volume.
control volume, this region. Okay, and I'm going to look at these control volume particles only once it enters and once it enters, and when it leaves away, we don't care where it is moving. Okay, we just focus our attention inside this control volume only. Okay, now before deriving this Reynolds transport theorem, uh, let me tell you that what is our aim. So as our essential aim is to so let me write this aim. So what exactly I will be doing? So our aim is to get the rate of change of any property. So this n is any, or maybe phi, or maybe psi, or any property, any extensive property. So so any rate of change of any property as seen by system or control system. This control system. Okay, so when and where it is seen in control system, it should be connected with that of control volume, dn by dt, as seen in control volume. Okay, this is what we need, a connection between these two. Okay, and we need to have a relationship, essential relationship between these two, and that is what in this particular class we are going to get a mathematical relation between these two by certain assumption, and we will start from somewhere. Okay, and beforehand you should be able to know that what these extensive and intensive properties are actually. So any idea what do you mean by extensive? So I wrote here extensive property, any extensive property, or any so can you tell me what extensive property is? Any property which is extensive. Yeah, the extensive property are the properties which are independent of mass. Okay, independent of mass, but that should be dependent on mass. So extensive means it should extensively dependent on mass, whereas intensive property is independent of mass. You are on right track, but you confused it. So intensive property, another property is intensive property. So likewise, so a good way to understand this intensive and extensive property is what you take is, let's suppose temperature. So temperature, so there is a room. So in this room, the temperature is, let's suppose here it is 25 degrees C, and here it is also at this corner it is also 25 degree, this corner also 25 degrees C. When you break this room in two parts, you will get 25 and 25 degree everywhere. Okay, so this is an intensive property. Okay, so intensive property means it does not depend upon the portion, or it does not depend upon the mass you are taking or the volume you are taking. Okay, so temperature is an intensive property. Pressure is intensive property. Again, temperature, pressure, density is an intensive property. Whereas when we talk about, so can you mute yourself? Yes, sir. So okay, so the extensive property, let me talk about extensive. So extensive properties, let's suppose you have a room and you are talking about the mass itself. Okay, so it is having, let's suppose it is having 12 kgs of air inside this room. When you break this room in two parts, you will get how much? 6 kgs each if you divide it equally. So you get halves. So your property becomes half when you break into two pieces. Okay, you'll get 6 and 6 each. So this is kind of extensive property. So this is what I am interested in this particular phenomena. So n could be replaced by either mass or momentum or energy or entropy. Excuse me, sir. Tell me. Sir, actually मेरा जो
नेट पैक खत्म हो गया था, सो मुझे दूसरे से कनेक्ट करना पड़ा, तो डिस्कनेक्ट हो गया था अच्छा अच्छा, मीटिंग। ओके। तो ओम बोल रहे हो? नो सर, सुप्रियो बोल रहा हूँ। सुप्रियो, हाँ। तो तुम चाहते हो रिपीट करें या क्या? जैसा बोलो। यस सर, आप ओके, तो मैं प्लीज कहाँ मिस थोड़ा किया था बताओ। सर, स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ही, ओके। ओके, तो यस लेट मी start with this again. So in today's class we are going to talk about Reynolds transport theorem. Okay, ये Reynolds transport theorem significant हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्योंकि ये कनेक्ट करता है कंट्रोल सिस्टम अप्रोच को कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच के साथ। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम अप्रोच और कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच को हम ऐसे देख सकते हैं। लेट सपोज एक मेरा रिवर है, ठीक है। अब रिवर के फ्लो फील्ड को हमको एनालाइज करना है। तो अगर हर पार्टिकल को हम ट्रैक करेंगे, तो हर पार्टिकल को ट्रैक करना मतलब वो कंट्रोल सिस्टम अप्रोच है। मतलब हम एक सेट ऑफ पार्टिकल्स हम ले लिए, ये मेरा कंट्रोल सिस्टम है, इस पर हम बैठ गए और इसके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसको एनालाइज करना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है, क्योंकि तुम हर पार्टिकल को ट्रैक नहीं कर सकते हो कब कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली बहुत कम्बरसम होगा, कंप्यूटेशनली कॉस्टली होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच को प्रेफर करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब हम बोलेंगे कि नदी के हम बस एक पोर्शन को बराबर, हम एक पोर्शन को ही देखते रहेंगे और जस्ट हम देखेंगे कि ये सेट ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से आए और चले गए, और आए तो हम केयर करेंगे, चले गए तो हम फिर केयर नहीं करेंगे। एज लॉन्ग एज वो जो सेट ऑफ पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स थे, जो सेट ऑफ कंट्रोल सिस्टम पार्टिकल्स थे, वो मेरे कंट्रोल वॉल्यूम में आए और चले गए, तो जब तक मेरे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर थे तो हम केयर कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। फिर जब वो चला गया तो उसको छोड़ दिए। तो ये अप्रोच जो है ज़्यादा सही होता है कंट्रोल वॉल्यूम को, कंट्रोल वॉल्यूम से फ्लूइड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को देखना। पर इसका एक ड्रॉबैक है कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच का, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच पे हम फिजिकल लॉज नहीं लगा सकते हैं। कारण ये है कि कंट्रोल वॉल्यूम जो जो ये चीज़ है वो कंट्रोल सिस्टम पे हम फोर्स लगा सकते हैं। सी, फोर्स लगा के हम पार्टिकल को बताएंगे कि एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम बताएंगे तो बोलेंगे फोर्स लग रहा है, तो वो पार्टिकल टू पार्टिकल पे हो सकता है, इनर्शियल फ्रेम में हो सकता है, राइट। तो जो कि कंट्रोल वॉल्यूम में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इन दोनों सेट्स, ये जो अप्रोच है कंट्रोल सिस्टम अप्रोच और कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, इनके बीच में एक रिलेशन ढूंढना है। और ये जो रिलेशन है ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम कहलाता है, ठीक है। तो हमारा आज का एम क्या होगा, किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, उस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हम रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ हम देखना पसंद करेंगे, ठीक है। और उसको हम रिलेट करेंगे उसी प्रॉपर्टी का रेट ऑफ चेंज कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हम आज फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग हम ये बताएं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है, लेट सपोज हमारा एक कमरा है, उसमें सभी गैस मॉलिक्यूल्स 25 डिग्री सी पे थे। इस कमरे को मैंने दो भाग में बांट दिया, पार्टीशन कर दिया, फिर भी इस कमरे के सभी भाग में हमें 25 डिग्री टेम्परेचर ही मिला। तो इरिस्पेक्टिव कि तुम उसका मास आधा कर दिए, फिर भी हमारा टेम्परेचर सेम मिला मुझे। तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उनमें टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, डेंसिटी आता है, ठीक है। पर हम लोग आज जिसका बात करेंगे, जिन प्रॉपर्टीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो मोर ज़्यादातर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास आता है, मोमेंटम आता है, एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें में हम इंटरेस्टेड होते हैं। इनका जो है रेट ऑफ चेंज कैसे हो रहा है वो हम जानने का कोशिश करना चाहेंगे। और इसको अगर हम जैसे 12 किलो का हमारा एयर है मान लो इस रूम में, उसको पार्टीशन करते हैं आधा आधा, तो आधे रूम में 6 किलो बचेगा और दूसरे आधे में 6 रहेगा, ठीक है। तो द मोमेंट यू मेड इट हाफ, यू विल गेट योर प्रॉपर्टी हाफ्ड, ओके, प्रॉपर्टी भी आधा हो जाता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम, जो कि मास पे डिपेंड करता है, सर्टेन सेट ऑफ मास को उठाए और उसका आधा हो गया, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करते हैं। इसमें मास आता है, मोमेंटम आ सकता है, एनर्जी आ सकता है, एंट्रोपी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है, और भी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। बट इनमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी मैंने ये बताया, ओके। अब नेक्स्ट हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सर हाँ बताइए। सर मतलब
एम में हमारा एम ये रहेगा ये थियरम में कि हम एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कंट्रोल सिस्टम मतलब विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल सिस्टम हाँ उसका रिलेशन एनी रेट ऑफ एक्सटेंसिव चेंज, प्रॉपर्टी हाँ उसका रेट ऑफ चेंज को कंट्रोल वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज से रिलेट कर पाए। अभी हम रिलेशन दिए नहीं, हम जस्ट हम बोले, इक्वल भी हम नहीं बोल रहे हैं, हम एक रिलेशन देख पाए। सो दैट इज आवर टुडेज एम। ठीक है, गुड गुड। तो हम नेक्स्ट स्लाइड चले जाते हैं। लेट मी ड्रॉ सेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। लेट सपोज मेरा एक फ्लूइड पार्टिकल था स्पेस में, मान लो रिवर का एक फ्लूइड पार्टिकल था। ठीक है, वो मूव कर रहा था रीजन में, ऐसे 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 जाके ये मूव करना शुरू किया, ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा था, ऐसे जाके ऐसे, लेट सपोज ऐसे मूव कर गया। ठीक है, सो एट t इज इक्वल टू एट टाइम इज इक्वल टू t पे, t इंस्टेंट पे मुझे ऐसा दिखा, सेट ऑफ पार्टिकल्स हैं ऐसे। ठीक है, अब साथ में मूव कर रहे तो ये एक तरह का कंट्रोल सिस्टम का पार्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब हम क्या किए, इस फ्लूइड पार्टिकल, इस सेट ऑफ पैकेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स को हम ट्रैक किए और हम देखे कि एट 1 सेकेंड, हेलो, हाँ क्लास में एक्चुअली हम लेक्चर के बाद बात कर, हाँ लेक्चर के बाद बात कर देते हैं। हाँ ओके ओके ओके, हाँ ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम एट टाइम डेल्टा टी टाइम तक वेट किए और टी प्लस डेल्टा टी पे हम फिर इस फ्लूइड पार्टिकल को देखे कि कहाँ गया। ठीक है, तो ये पार्टिकल हम देखे कि ऐसे मूव कर गया अपने थोड़े नेक्स्ट टाइम पे, ऐसे मूव कर गया। तो लेट्स सपोज ग्रीन से कर देते हैं। हाँ, तो टी प्लस डेल्टा टी पे ये अब डिफॉर्म भी कर गया होगा, मुझे नहीं पता, लेट्स सपोज डिफॉर्म भी कर गया थोड़ा सा ऐसे करके। ओके, तो ये वाला मेरा टी प्लस डेल्टा टी पे पार्टिकल ऐसे मूव करता जा रहा था। अच्छा, अभी हम क्या बोल रहे हैं, तो ये दोनों अभी क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम को देखे और कंट्रोल सिस्टम आगे बढ़ गया, मतलब वो सेट ऑफ पार्टिकल्स। अब हम उसको हम क्या करेंगे, एक रीजन, अभी हम मैंने क्या बताया, आई विल सेट अ पर्टिकुलर रीजन। तो मैं एक रीजन सेट करता हूँ और उसको मैं कंट्रोल वॉल्यूम बोल दूंगा। ठीक है, तो मैंने बहुत वाइजली मैंने क्या किया, मैंने ये पोर्शन जो कॉमन एरिया है उसको मैंने, ये कॉमन एरिया को मैंने अपना फोकस वहीं पे रखा और बोल दिया कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम है। अब कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो मेरा फिक्स रीजन हो गया। अब तो अभी हमारा ऐसा फिलॉसफी ये रहेगा कि वो जो रेड एरिया है वहाँ पे हम फिक्स रीजन रखे थे, कुछ आया और कुछ कॉमन एरिया में यूनियन हुआ और फिर निकल गया। ठीक है, मेरा फिलॉसफी ऐसा रहेगा देखने का। तो अब यहाँ पे ऐसे करने से क्या होगा, मुझे कनेक्शन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, ओके, वी आर गुड टू गो नाउ। So let me take another color. So let's suppose ये जो फ्लूइड एरिया है, जो इंटरसेक्शन इधर वाला एरिया है, वो फर्स्ट रीजन था। ये जो कंट्रोल वॉल्यूम वाला एरिया है वो सेकंड रीजन था और ये थर्ड रीजन था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके गुड। और हम ये बोल रहे हैं कि जो मेरा ब्लू वाला एरिया था, ब्लू वाले एरिया में कैपिटल N एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको हम उसका रेट ऑफ चेंज देखना पसंद कर रहे हैं ब्लू वाले एरिया में, याद रखना ब्लू एरिया में। ठीक है, तो रेड ही ले लेते हैं, सॉरी ब्लू ले लेते हैं। ओके, सो एन मेरा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी मैं डिफाइन करता हूँ, अगर कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम मास से डिवाइड कर दें, टोटल मास से, तो जो भी बचेगा मेरा, let's suppose a small n bacha, this is called intensive property. So any extensive property can be written in terms of extensive property can be written in terms of intensive property just by dividing it by mass. Okay, तो ये per unit mass में आ जाएगा तो वो always intensive हो जाएगा, right? So intensive, hope ये सब चीजें आप लोग को ज्यादा बॉदर नहीं कर रही हो क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो इसका यूनिट हो गया, जो भी प्रॉपर्टी वाला, लेट्स सपोज एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट मास हो गया, तो एनर्जी पर यूनिट मास जो है हर जगह का लोकेशन का सेम रहेगा।
हालांकि जो ओवरऑल एनर्जी होगी वो अलग हो जाएगी, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी मास चेंज करने पे, बट एनर्जी पर यूनिट मास की जब बात करेंगे तो वो इंटेंसिव बन जाता है, ठीक है। ओके गुड, सो फार सो गुड। तो ये मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ओके, नाउ हमारा एम क्या है? सो एम इज टू कैलकुलेट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी dn by dt ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो मे बी सिस्टम लिख देते हैं। ओके, सो कैन आई राइट dn by dt? सो n प्रॉपर्टी जो था वो इस ब्लू वाले रीजन में वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, राइट? So any time derivative thing can be written as n at t plus delta t minus n at t पिछले वाला t divided by delta t limit delta t tends to 0. Can I write this? Yes. So any differential, any rate of change can be written in terms of limit form in this fashion. Okay, the property n having the value of property n at t plus delta t minus property value of property n at t time divided by delta t. Okay, and we'll assume that delta t tending to 0. बहुत small time के लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। Now can I write this n plus delta t as, so n plus delta t is what? So n plus delta t मतलब n की प्रॉपर्टी t plus delta t टाइम पे क्या थी? ग्रीन वाला एरिया था इनक्लोजर, तो वो कौन कौन सा रीजन है? 2 plus 3, right, if I'm not wrong. So can I write n सेकेंड एरिया का t प्लस डेल्टा t पे जो वैल्यू थी प्लस n थर्ड वाले एरिया में भी थी, किस टाइम पे? t प्लस डेल्टा t टाइम पे। कैन आई राइट दैट? यस, क्यूमुलेटिवली आई कैन राइट दैट। ओके, सिमिलरली nt प्रॉपर्टी nt t टाइम पे n प्रॉपर्टी कहाँ कौन कौन से एरिया में था? तो फर्स्ट और सेकंड एरिया में था। सो कैन आई राइट दिस एज n फर्स्ट एरिया at t time plus n second area at t time, right? So let me cumulatively write it. So n second area t plus delta t plus n third area t plus delta t minus n फर्स्ट रीजन में t टाइम पे, कॉमा कर देते हैं कंफ्यूजन नहीं हो, सभी में कॉमा कर देंगे, माइनस n सेकेंड रीजन में t टाइम पे डिवाइडेड बाय डेल्टा t limit delta t tends to 0. Okay, now what I will do is I'll fetch, हाँ, okay, now I will club these two guys, ये वाला और ये वाला एक साथ करते हैं और ये वाला और ये वाला एक साथ रखते हैं, and let's do this exercise. So this is just algebraic manipulation. So n second वाला t plus delta t minus n सेकेंड वाले रीजन का t टाइम पे डिवाइडेड बाय डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 प्लस बाकी ये दो क्वांटिटीज लिख देते हैं। ओके, एंड दिस इज व्हाट n थर्ड रीजन t प्लस डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t माइनस n फर्स्ट रीजन एट t टाइम डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, नाउ दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग? सेकेंड एरिया में डेल्टा t टाइम पे, सेकेंड एरिया का t प्लस डेल्टा t टाइम पे, सेकेंड एरिया का t टाइम पे, और सेकेंड एरिया में ही देख रहे हैं, तो सेकेंड एरिया इसका मतलब क्या हुआ? हम कहाँ पे फोकस किया? सो दिस लिमिट entirely talks about your rate of change of that property with respect to time when seen as control volume. Isn't it beautiful? Plus these two quantities. These two quantities are what? So these two quantities
are nothing but, so limit delta t tends to 0 अगर कर रहे हैं, so this is what the property n at third region at t plus delta t. so ये वाला रीजन और फर्स्ट वाले रीजन पे ये वाला रीजन है. तो एसेंशियली ये वाला चीज क्या हुआ, ये वाली चीज मुझे आउटफ्लो या आउटफ्लक्स दिखा रहा है जो बाहर की तरफ निकल रहा था, और ये वाला चीज क्या दिखा रहा है, इनफ्लक्स. ओके, ओह सॉरी, ओके इट्स देयर, let me save that, otherwise I will lose this document. Sometimes it happens. Okay, so अब हम क्या बोल रहे हैं, dn by dt of system जो अभी हम देख रहे थे उसको हम लिख रहे हैं dn by system is equal to dn by dt with respect to control volume, when I am saying that with control volume, plus whatever outflux minus influx, it means rate of outflow of property minus rate of inflow of property. Okay, now we will take these two things in slight detail, and this also. Let me go and take another slide. Let me write it again. dn by dt system is equal to dn by dt control volume plus something. Okay, now let me redraw those two figures again. So this is my first region, this is my second, and this is my third region. So let me first focus on this particular term, dn by dt cv. So let me, what should I do? How to calculate this? So प्रॉपर्टी का रेट ऑफ चेंज कंट्रोल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम और वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है. तो so essentially can I write this way? So let me write this way here. Let me change my color, green. Okay, so essentially n, small n is nothing but n by m. Okay, and when I talk about small infinitesimal volume or infinitesimal mass, so can I write n is equal to n dm integration. So when I integrate, so this is the same thing, right? So you can write n is equal to, capital N is equal to nm, but in holistic sense, when I take this as differential elements, so differential elements are dn is equal to n dm. So then I integrate it, and then we can write capital N is intensive property times the differential mass multiplied and integrated over it with all the masses. We can get this also. So this is the way to write again if we are seeking things in infinitesimal small area or small volume or mass. Okay, so what is this n? So okay, so what is this dm in terms of dv? Okay, tell me. So dm is equal to rho dv. Can I write? Mass is equal to density times, right? So I can safely write n dm is equal to rho dv. That's it. So I will substitute this n here, and I can write dn by dt as d by dt integration of rho n. So n is the intensive property now, dv. dv means the small volume and integrated over the whole volume which was covered by control volume. So this is integrated over this control volume. So first thing I got plus. Second, for second, what is my second? So this is the rate of outflow and rate of inflow.
For red thing, let me draw another diagram here with red. So यहाँ से प्रॉपर्टीज क्या निकल रही है उसके लिए हम कैसे देखेंगे. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो बाहरी सरफेस है उसको कंट्रोल सरफेस बोलते हैं. ओके, फिर क्या कहा आपने? कंट्रोल सरफेस बोलते हैं. मतलब कंट्रोल वॉल्यूम एक इमेजिनरी वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम को इनकम्पास करता हुआ कोई सरफेस है, तो कंट्रोल सरफेस बोलते हैं उसको. That's it. ओके, ठीक है. थैंक यू सर. अभी हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल कंट्रोल सरफेस में डिफरेंशियल एरिया हम चूज करते हैं, उसको डीए नाम दे देते हैं. ठीक है. अब चूंकि हमको फ्लक्स देखना कितना बाहर निकल रहा है, ओके, तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, लेट्स सपोज दिस इज माय यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू, लेट्स सपोज n कंफ्यूज होगा, n सेम हो जाएगा. लेट्स टेक इट s कैप, सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर. ठीक है. and the velocity that the property is coming out, it's at some angle and it is v velocity vector. ये है कुछ. तो इसको अगर exaggerate करके देखें, let's suppose this was my control volume, second area था मेरा, और यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया. ठीक है, वो dA एरिया था और इसका नॉर्मल वेक्टर s वेक्टर है और ये dA लेंथ का है, छोटा सा स्मॉल लेंथ है. ठीक है. और इस पे वेलोसिटी, मतलब जो फ्लूइड एलिमेंट थी वो ऐसे करके ऐसे जा रही थी, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ था. लेट्स सपोज वेलोसिटी वेक्टर है और ओके, सो वेलोसिटी वेक्टर, so this vector dotted with this. Okay, so essentially when you talk about the rate of flow, so what you do, so rate of flow कैसे देखते हैं, rate of m dot कैसे देखते हैं, रो times area rho av, right? Okay, so a here is a scalar, उसके बदले यहाँ ये वेक्टर है मेरा, तो s cap dot velocity vector. Thank you, very nice. Okay, और ये चीज जो है multiplied with my n, this particular n. Okay, that's it, and integrated over this dA would be integrated over all control surface. So this is control surface, not control system, this is control surface, and that's it. We are ready to go. That's it. So let me write it properly, and this is the most strong relation, and you will find this, I mean this relation is so fundamental that in all fluid mechanics problems from today till end of this course, we will be talking only about this particular relation. Okay, so let me write it properly. So dN by dt system is equal to d by dt rho n dv. कंट्रोल वॉल्यूम पे हम इंटीग्रेट करेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम, so this volume is integrated over whole control volume plus, let me write it in nicer way, rho properly written as v dot, actually dot product है तो swap कर सकते हैं, v dot s cap the unit vector times dA and integrated over control surface. Okay, now let's take पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, मास कंजर्वेशन मैंने बताया था, राइट? तो यहाँ पे छोटा सा हम एक्सरसाइज करते हैं. सो मास कंजर्वेशन है तो प्रॉपर्टी मेरा क्या है, प्रॉपर्टी मेरा क्या है, मास है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा मेरा, एक मिनट, हाँ, दैट प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय m कैंसिल. सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मेरा n की वैल्यू क्या है, 1. अगर n की वैल्यू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मेरा कौन सा चीज दिखने लगेगा, ओ यहाँ n छूट गया, आई एम सॉरी, n यहाँ रख देते हैं, छूट गया, ये वाला n छूट गया. ओके, तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हम मास को एलोकेट कर रहे हैं. सो मास कंजर्वेशन मेरा कैसे दिखेगा, dm by dt सिस्टम इज इक्वल टू d by dt
रो टाइम्स 1, सो रो dv प्लस n, सो n मेरा 1 हो जाएगा। आई एम सॉरी, इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे, डिलीट कर देते हैं क्विकली। सो दिस इज रो, क्योंकि मेरा n 1 है, क्योंकि प्रॉपर्टी हम मास लिए हैं, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मेरा पर यूनिट मास, मास पर यूनिट मास इज 1 यूनिट, सो रो v dot s cap dA, and this is what we got yesterday as well, if you remember. Let me go back and let me show you. Yes, this one. This is the differential form, but again this this will lead to the similar expression. This is again mass conservation in differential form, and this is mass conservation in integral form. Okay, so okay, this is also a good good thing to know. So differential form and integral form. Differential form or integral form. तो ये दो फॉर्म ऑल्दो सेम थिंग है, पर दो फॉर्म हम लोग क्यों लेके चलते हैं? कैन समबडी स्टेट, बिकॉज आई होप बीटेक में आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज होगा। ओके, तो देखो इंटीग्रल फॉर्म जो होता है, लेट्स सपोज इंटीग्रल फॉर्म कैसे अब समझाएं। सी मेरा एक फ्लूइड जेट है और वो हम लेट्स सपोज किसी प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक करके फ्लूइड जेट मेरा इधर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये इस सिनारियो में आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कि फ्लूइड जेट जो है इस प्लेट पे क्या फोर्स लगा रहा है बिकॉज ऑफ मोमेंटम चेंज। ओके, इसका मोमेंटम चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम के कारण फोर्स आया, जो फोर्स इस पे अप्लाई हुआ। तो अगर यदि मुझे, इफ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द ओवरऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ माय फ्लूइड मैकेनिक्स एज इन बाहरी तौर पे, मतलब हम उसके इनसाइड में नहीं जा रहे हैं क्या हो रहा है, बाहरी तौर पे मुझे बस फोर्स देखना है क्या हो रहा है, तो मुझे चीज़ों को इंटीग्रल फॉर्म में देखना पसंद करूंगा, और इंटीग्रल फॉर्म करके मुझे फोर्स निकालना मैं इजी होगा मेरे लिए, एज कंपेयर टू यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म लगाएंगे तो। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म मतलब छोटे छोटे एलिमेंट पे हम फोर्स लगते हुए देख रहे हैं, तो ये करने में ही मेरा पूरा टाइम चला जाएगा कि अलग अलग एलिमेंट पे क्या फोर्स लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेरा एम ये था कि ओवरऑल मेरा क्या फोर्स लगा रहा है, तो वो इंटीग्रेट करो पूरे चीज़ों को एक साथ और तब देखो क्या हो रहा है, और वो मुझे टोटलिटी में फोर्स क्या लग रहा है बता सकेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटीग्रल फॉर्म कब का क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली वैलिड तो नहीं बोलेंगे, दोनों वैलिड ही है, दोनों सही चीज़ है, पर कब क्या चीज़ यूज़ करना है वो ध्यान में रखना है। तो इंटीग्रल फॉर्म एक होलिस्टिक सेंस के लिए यूज़ होता है, डिफरेंशियल फॉर्म अगर एलिमेंट पे हम फोर्स बैलेंस या मास बैलेंस देखना चाह रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे, राइट। ओके, सो ये थोड़ा एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, बट द होल पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज टू कनेक्ट द चेंज ऑफ, सो यहाँ पे अगर देखें तो मास का चेंज सिस्टम, ये वाला जो मेरा सिस्टम था ब्लू वाला, उसका चेंज मास का कैसे हो रहा था टाइम के साथ, वो हम अब कंट्रोल वॉल्यूम में बैठ के बता पाएंगे ऐसे हो रहा था। Isn't it beautiful? So this is essentially rate of change of mass with time in control volume, and this is something coming in, something going out minus something coming in. So this is the net rate flux. So this is flux that is coming in or going out, and this is rate of change of the quantity as viewed in control volume itself. Isn't it beautiful? Okay, so essentially तो यहाँ पे कभी मास रख लिए, अब यहाँ पे जैसे मुझे नेवियर स्टोक्स करना है मुझे, तो नेवियर स्टोक्स के लिए क्या होता है, मोमेंटम सॉल्व होता है, तो मोमेंटम रख लेंगे, दैट्स इट। तो प्रॉपर्टी मेरा मोमेंटम हो गया,
मोमेंटम क्या है, मास टाइम्स वेलोसिटी, तो दिस इज p। तो अब मेरा जो प्रॉपर्टी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास, दिस इज m v बाय m। तो जहां पर भी मेरा n होगा वहां पे डायरेक्टली मुझे v लिख देना है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखें, momentum divided by dt as seen in system, then we can write this as d by dt rho v, ये मेरा n हो गया, n के बदले आया rho v dv। ध्यान देने वाली बात है, मैं वॉल्यूम को मैं कट कर रहा हूँ और वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये दो चीज़। तो वॉल्यूम को मैं ऐसे कट करके लिख रहा हूँ और वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिंपल, ये ध्यान रखना। ये वॉल्यूम हो गया और ये वेलोसिटी हो गया, ये दो चीज़ें, प्लस रो टाइम्स द प्रॉपर्टी राइट डॉटेड विथ अगेन वेलोसिटी, ठीक है। ये कोइंसाइड हो गया कि ये, अच्छा एक चीज़ और नोटिस करना है, रुकिएगा यहाँ बताते हैं हम। और ये फिर क्या हो जाएगा, नहीं डॉट नहीं होगा ना, क्या होगा, हाँ ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, आई एम सॉरी, ये डॉटेड होगा एस डी एस है, तो यहाँ वी स्क्वायर आ जाता है, जो भी है। तो यहाँ गौर करने वाली बात, ये एक और मिस कर गया यहाँ पे, whatever velocity that we were writing here, whatever v I am writing here is the velocity of the control volume frame, ठीक है, velocity of control volume with relative to control volume। control volume का क्या, as viewed in control volume, control volume पे बैठ के हम जो velocity दिख रहा है वो लिखना है, ठीक है। तो ये वाला relative to control volume लिखेंगे, relative to कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। और ये वाला जो वेलोसिटी है वो ओवरऑल वेलोसिटी है फ्लूइड का। सो ये ओवरऑल वेलोसिटी है, ये वाला ओवरऑल वेलोसिटी है, बट ये वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव टू कंट्रोल वॉल्यूम। सो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे अभी आने वाले क्लासेस में, और फिर देखिएगा इसका एप्लीकेशन, और फिर देखिएगा मज़ा आएगा। हम लोग फ्लूइड सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करने जा रहे हैं, एंड इट विल बी वेरी फन पार्ट, ठीक है। तो आज का यही हमारा, यहीं पे हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। लास्ट थिंग, दिस डी मोमेंटम बाय dt इज नथिंग बट द फोर्स, ओके। तो ये हम तभी कर पाए, सी dm बाई dt को हम फोर्स तभी कर पाए, यहाँ पे हम लॉस तभी लगा पाए, न्यूटन्स लॉ, जब हम सिस्टम पे लगा रहे हैं, ना कि कंट्रोल सरफेस पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये ही ब्यूटी है यहाँ पे, कंट्रोल सरफेस पे, सॉरी कंट्रोल वॉल्यूम पे हम इक्वेशन लिख के हम उसको रिलेट कर रहे हैं सिस्टम से, और उसका जो रेट ऑफ चेंज है उस पर लॉस लगा के हम बोल रहे हैं ये फोर्स हो गया। क्या ब्यूटीफुल चीज़ है, राइट। मतलब लोगों ने जो बनाया है, आई मीन जो भी मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ये करके गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ करके गए हैं। वी शुड रियली अप्रिशिएट देम। ओके, सो एनी डाउट, आई मीन होप थिंग्स वर क्लियर एंड हाँ बोलो। हाँ, मोमेंटम का यूज बेसिकली फोर्स को ऑब्टेन करने के लिए किया ना, मतलब राइट फोर्स ऑब्टेन करनी है। एक्चुअली जेट वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग ऐसे ही देखेंगे, ठीक है, ओके, है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स होता है, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तुम्हारा बॉल हम फेंक रहे हैं, उसमें चेंज इन मोमेंटम आया, तभी हम मेरे जैसे बॉल फेंके अपने हाथ पे, तो हाथ पे चोट क्यों लगा, तो बॉल का एक मोमेंटम था, मोमेंटम इधर की तरफ था, अब बॉल जो हाथ पे लग के उल्टे तरफ गया, तो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आया वो फोर्स आया, और वो फोर्स किस पे लगेगा, बॉल पे लगा। अब बॉल पे लगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हाथ पे भी लगा, राइट। तो यहाँ से फोर्स आता है, जनरेट होता है, राइट, क्योंकि बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ। अगर बॉल का मोमेंटम चेंज नहीं होता तो फोर्स नहीं लगता। बॉल का मोमेंटम इधर था, मोमेंटम वापस हुआ मतलब बॉल पे कोई फोर्स लगा, अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तुम्हारे हाथ पे भी लगा, इसलिए हाथ पे फोर्स आता है, ठीक है। दैट इज द एक्चुअल रीजन। तो बॉल के जगह फ्लूइड रख लो, फ्लूइड का मोमेंटम इधर जा रहा था, स्ट्राइक किया और वो इधर उधर गया, तो इधर उधर जाने से उसका मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज होने के कारण हम बोलेंगे कि उस पे फोर्स लगा था, अब उस पे फोर्स लगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तुम्हारे प्लेट पे लगा, राइट। सर आपने बोला कि कंट्रोल वॉल्यूम के जो इंटीग्रल है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। हाँ
रेट ऑफ और चेंज ऑफ, हाँ, क्वांटिटी इस ब्लू वाले सिस्टम का। बोलो। और कंट्रोल सरफेस पे मतलब हमने वेलोसिटी वेक्टर और एस कैप जो लिया, हाँ वो हाँ हाँ क्या रहेगा टर्म? हाँ, तो वो हम क्या किए, अब देखो कंट्रोल सरफेस तो मेरा इमेजिनरी सरफेस है। अब मेरा जो फ्लूइड एलिमेंट इधर से आ रहा था और ऐसे पास किया, अब पास किया तो सरफेस से नॉर्मल पास किया या किसी एंगल पे पास किया या ऐसे पास किया, ठीक है, तो उसका डॉट फ्लक्स उसका लेंगे ना, तो उसका डॉट कर देंगे। तो अब जो ये जो वेलोसिटी जिससे पास किया वो इसके रिलेटिव लेंगे। अब कभी कभार क्या होता है ना, तुम्हारा कंट्रोल वॉल्यूम भी मूव कर रहा होता है, ठीक है, कभी कभार, बहुत रेयर केसेस में, तो वहां पे कंट्रोल वॉल्यूम पे बैठ के तुमको देखना किस वेलोसिटी से फ्लूइड निकला। क्लियर? ओके। हाँ, तो जनरली होता नहीं, जनरली कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स ही होता है, तो ये जो v वही v होता है जिस v से तुम्हारा फ्लूइड एलिमेंट पास किया किसी एंगल पे, दैट्स इट जनरली। बट ये मोस्ट जेनरिक वे में हम गए, अगर तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम भी जा रहा था और कंट्रोल वॉल्यूम जो हम लिए थे वो रीजन को भी हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर रहे थे, कई केसेस में कर सकते हैं, कई केसेस में होता भी है, मतलब बहुत फ्यू केसेस में, जैसे टरबाइन में इनलेट वेलोसिटी, इनलेट करके जैसे वेरिएबल ब्लेड का हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है, उस केस में हम ये भी चेंज करना, टाइम के साथ ये भी हम श्रिंक करके कुछ देख रहे होंगे, तब के केस में हम बोल रहे हैं, बट बहुत रेयर केस है। तो अभी उसको सिंपल मानो कि ये जो रिलेटिव टू कंट्रोल वॉल्यूम है, ये वही वेलोसिटी होगी जो जिससे ये पास किया। ओके, ठीक है, एनी डाउट? मुझे लगा कि आई थिंक आई हैव क्लियर्ड इट एनफ, आई मीन मैंने ट्राई किया पूरा समझाने का। होपफुली अगर सुप्रियो को प्रॉब्लम हुआ है तो रिकॉर्डिंग चालू है, ही कैन सी द रिकॉर्डिंग, है ना? या कंफ्यूजन होगा तो आपसे भी पूछ सकता है, ठीक है? श्योर। ओके, सो लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।